Hello students, welcome to BBVN online classes and today's poem is Where do all the teachers go? सारे teachers कहाँ जाते हैं? So for a little child a teacher is special. एक बच्चे के लिए टीचर बहुत स्पेशल होते हैं. It is difficult for a small child to think of his or her teacher as an ordinary person. और वो एक कॉमन मैन उनको समझता भी नहीं है क्योंकि टीचर्स क्या होते हैं एक बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं. So it is difficult for a small child to accept that a teacher is also any common man or woman living around him. कि उसके टीचर क्या होते हैं एक नॉर्मल से इंसान होते हैं जो आसपास में रहते हैं. The child wonders and cautions that teachers also behave like other people. वो सोचता है कि क्या टीचर्स भी दूसरे लोगों की तरह बिहेव करते हैं. If they also do all the work or things other people do, क्या जो सारे लोग करते हैं वो भी वही करते हैं. Like do they live in houses? Do they wear pajamas, wash socks और watch TV? ये सारे काम करते हैं. Do they also have parents and children to live with? उनके माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे होते हैं जो उनके साथ में रहते हैं. All these questions bother a child's mind and out of curiosity one day the child decided to follow his teachers to keep a check and to write a poem about them so that the teacher read that poem to their students. ठीक है, तो एक दिन एक बच्चा ये डिसाइड करता है कि वो अपने टीचर को फॉलो करेगा और पता करेगा कि उसके टीचर क्या क्या काम करते हैं और फिर एक दिन वही टीचर जो हैं वो बच्चों के सामने उसकी पोएम को पढ़ेंगे. इट शोज द क्विटनेस, प्योरिटी एंड क्यूरोसिटी एंड डायलेमा अ यंग माइंड हैज़ फॉर हिज टीचर्स. इट ऑल्सो शोज देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टीचर्स कि हमारे टीचर्स के साथ में क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी हमें दिखाता है. So let us start reading the chapter और इसका explanation समझते हैं. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? जब घड़ी में 4 बज जाते हैं तो सारे टीचर कहाँ जाते हैं. Do they live in houses? क्या वो घरों में रहते हैं. And do they wash their socks? और क्या वो भी हमारी तरह क्या करते हैं सॉक्स जो हैं वो वॉश करते हैं. So the child wonders and questions where all the teachers go after the school hours. When it's 4 o'clock, he wants to know if like any other ordinary being they also live in houses and wash their socks. Means do they also do all the routine work like other people. यानी कि वो जानना चाहता है कि क्या टीचर भी बाकी लोगों की तरह ही रूटीन वर्क को फॉलो करते हैं या कि नहीं. Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? यानी कि क्या वो वाकई में क्लोथ्स जो हैं वो पजामा कैरी करते हैं अपने घरों में, अपनी नोजेस को इस तरीके से पिक करते रहते हैं. यानी कि वेस्ट टाइम में एक एक्टिविटी होती है जो है वो. फिर है द चाइल्ड वॉन्ट्स टू नो इफ टीचर ऑल्सो वेयर क्लोथ लाइक पजामाज एंड वॉच TV and do they also clean their noses the way other people do and waste their time. Next one is do they live with other people? Have they mums and dads? क्या वो दूसरे लोगों के साथ में रहते हैं या अकेले रहते हैं. माता पिता होते हैं उनके यहाँ नहीं होते. And were they ever children and were they ever bad? क्या वो कभी बुरे थे यानी कि बुरे चीज़ें करते थे या उनके बच्चे हैं. So further the child wonders by asking if they are also surrounded by people. क्या उनके आसपास भी लोग रहते हैं. If they also have parents and children like us to live with. क्या उनके पास में भी माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं जो उनके साथ रहते हैं. Did they commit any mistake or did anything wrong when they were children? या कभी वो बच्चे थे तो क्या कभी उन्होंने भी कुछ गलत किया था, उनको भी पनिश किया गया था या नहीं. Did they ever never spell right? Did they ever make mistake? क्या कभी उन्होंने लिखने में गलतियाँ की हैं, क्या कभी उन्होंने मिस्टेक्स करी हैं. Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? और कभी उनको चॉकलेट्स के लिए क्या किया गया है, कॉर्नर में ले जाकर पनिश किया गया है. Now he wants to know if they also made mistakes or were ever punished for stealing chocolates or doing any silly or naughty thing. यानी कि वो भी ये सोचता है कि क्या कभी टीचर्स के साथ में ऐसा हुआ है. Did they ever lost their hymn book? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? Hymns book यानी religious books. यानी कि
क्या द टेंडर माइंड यानी जो बच्चे का माइंड है वो ये सोच रहा है कि क्या कभी वो अपनी रिलीजियस बुक जो है वो कहीं पर भूल गए थे, या कभी उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं हम ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, या फिर कभी उन्होंने टेबल को बस ऐसे ही साफ़ करने में अपना टाइम जो है वो वेस्ट किया है, और कभी उन्होंने फटी पुरानी जीन्स पहनी है या नहीं। फिर वो कहता है डिसीजन वे में, आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, देन आई विल पुट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। वो कहता है कि आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो कहता है कि मैं आज क्या करूँगा, अपने टीचर को फॉलो करूँगा उसके घर तक स्कूल से। Once he is clear about everything, he would also like to compose or write a poem about it. तो वो एक उनके लिए पोएम लिखेगा और वही पोएम टीचर जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए रीड आउट करेंगे। ठीक है, सो इस वे में क्या होगा, इस वे में जो बच्चा है वो ये जान पाएगा कि टीचर्स जो हैं वो किस तरीके के होते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। वाई डज द पोइट वॉन्ट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock? क्यों जानना चाहता है? द पोइट वॉन्टेड टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन स्कूल गॉट ओवर। क्योंकि स्कूल में तो वो जानता है टीचर क्या करते हैं, लेकिन स्कूल के बाद जानने के लिए तो उसे ये फॉलो करना ही पड़ेगा। इट इज़ आउट ऑफ क्यूरोसिटी। What are the things normal people do that the poet talk about? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो normal people करते हैं? Normal people go home after work, they relax in their houses wearing an informal dress, watch TV, they live with their parents and children. Normal people commit mistakes. Sometimes they are seen wearing dirty clothes also. So what does he imagine about? Where teacher live? कहाँ पे रहते हैं? घरों में। द पीपल विद whom they live, किसके साथ में रहते हैं? अपने माँ बाप के साथ में। देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन द स्कूल, कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं? दे वर सेकेंड वन का है कि वॉश्ड देयर सॉक्स, वॉर पजामाज, पिक्ड देयर नोजेज एंड वॉच टीवी, lived with other people and if they also had mother and fathers. And next one का आंसर है they were also bad, made mistakes, never spelled right, were punished in the corner for pinching the chocolate flakes, they lost their hymn books scribbled on the desktop or wore dirty old jeans. So these were the question answers जो कि आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।